Once upon a time, there lived a woodcutter in a village called Vaikunth. He was very honest. Every day he would go to the forest, cut wood and sell it in the city. He would support his family with whatever money he earned. This way he was somehow managing to survive. एक समय की बात है। वैकुंठ नामक एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था। रोजाना वह जंगल में जाता था, लकड़ी काटता और शहर में बेचता। जो कुछ पैसे मिलते उसे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस तरह से उसका जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। One day, the woodcutter went to the forest to cut wood like every day, and he climbed up a tree on the bank of the river and started cutting wood. But while cutting wood, his axe slipped from his hand and fell into the river. एक दिन की बात है। वह लकड़हारा हर दिन की तरह जंगल में लकड़ी काटने गया और वह नदी के किनारे एक पेड़ पर ऊपर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। लेकिन लकड़ी काटने के दौरान उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। He immediately went down and tried very hard to take out his axe from the river, but he failed because the river was very deep and the flow of water was also very fast. Exhausted, he sat there and started crying because he did not have a single penny to buy a new axe. वह तुरंत ही नीचे उतरा और नदी से अपनी कुल्हाड़ी निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा क्योंकि नदी काफी गहरी थी और पानी का बहाव भी बहुत तेज था। थक हार कर वह वहीं पर बैठकर रोने लगा क्योंकि उसके पास नई कुल्हाड़ी लेने के लिए एक भी पैसे नहीं थे। Seeing the woodcutter crying, the river god appeared and said, "Son, what happened? Why are you so sad?" So the woodcutter told the whole thing to the river god. So the river god said, "Don't worry, I will find your axe and bring it." And he dived into the river and came out with a golden axe and said, "Son, here is your axe." लकड़हारे को रोता हुआ देखकर नदी के देवता प्रकट हुए और बोले, बेटा क्या हुआ, तुम ऐसे उदास क्यों हो? तो लकड़हारे ने सारी बात नदी के देवता को बताई। तो नदी के देवता बोले, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाता हूँ। और नदी में डुबकी लगाई और एक सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए और बोले, लो बेटा, यह रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। On seeing the golden axe, the woodcutter said that this is not my axe. This is the axe of some rich person. I cannot take it. On hearing this, the river god again dived into the river and this time came out with a silver axe and said, "Son, here is your axe." On seeing this axe, the woodcutter again said, "Lord, I am a poor woodcutter. I had an iron axe. This is also the axe of some rich person." लकड़हारे ने सुनहरी कुल्हाड़ी को देखते ही बोला कि यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, यह तो किसी धनवान व्यक्ति की कुल्हाड़ी, इसे मैं नहीं ले सकता। यह सुनकर नदी के देवता पुनः नदी में डुबकी लगाई और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकले और बोले, लो बेटा, यह रही तुम्हारी कुल्हाड़ी।
इस कुल्हाड़ी को देखकर फिर से लकड़हारा बोला, प्रभु मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, मेरी तो लोहे की कुल्हाड़ी थी, या भी किसी अमीर व्यक्ति की कुल्हाड़ी है। Once again the river god dived into the water and this time appeared with an iron axe and said, son, here is your real axe. The woodcutter became very happy to see his axe and said, Lord, this is my axe, along with the iron axe. The river god also gifted the golden and silver axe to that honest woodcutter. In this way, due to his honesty, he got the gold and silver axe along with his axe. एक बार फिर से नदी के देवता पानी में डुबकी लगाई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए और बोले, लो बेटा, यह रही तुम्हारी असली कुल्हाड़ी। लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी देखकर काफी खुश हो गया और बोला, प्रभु यह है मेरी कुल्हाड़ी। लोहे की कुल्हाड़ी के साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी को भी नदी के देवता ने उस ईमानदार लकड़हारे को उपहार में दे दिया। इस तरह से उसकी ईमानदारी के कारण उसे उसकी कुल्हाड़ी के साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी मिल गई। From this story, we learn that honesty is the greatest wealth in the story. The woodcutter got a gold and a silver axe along with his axe because of his honesty. Therefore, we should also become honest people. इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। कहानी में लकड़हारे को उसकी ईमानदारी की वजह से उसे उसकी कुल्हाड़ी के साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी प्राप्त हो गई। इसलिए हमें भी ईमानदार व्यक्ति बनना चाहिए।